আজকে কিছুগুলো গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন আমরা সমাধান করব। চ্যালেঞ্জার ফিজিক্স ভলিউম 1 MCQ সলিউশন ফর NEET and IIT JEE। একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন, ফর এ রেগুলার হেক্সাগন ABCD EF what will be the value of AB AC AD plus AE plus EF? O is the center of the hexagon। এটার জন্য আমি প্রথমে ছবিটা ড্র করি রেগুলার হেক্সাগন। ছবিটা ড্র করতে হবে, ফার্স্ট ড্র করলাম। ফার্স্ট ছবিটা ড্র করার পরে নাম দিলাম এ বি সি ডি ই এ এন্ড সি যোগ করে দিলাম, এ ডি যোগ করে দিলাম, আর এ ই যোগ করে দিলাম। AC, AD আর AE is the center। আমাকে বের করতে হবে AB প্লাস AC প্লাস AD প্লাস AE প্লাস AF সমান কত হবে। তো অপশন দেওয়া আছে, অপশন এ আছে, অপশন এ আছে 0, অপশন বি রয়েছে আমার 2AO, অপশন সি রয়েছে আমার 4AO, অপশন ডি রয়েছে আমার 6AO। সমাধান করা যাক কি আসছে, দেখে নিই আমি সলিউশন। AB প্লাস AC প্লাস AD প্লাস AE প্লাস AM। এক দুই তিন চার পাঁচ, 1 2 3 4 5। তো আমি দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমার AO সমান হাফ অফ AD, অর্থাৎ 2AO সমান হবে আমার AD, যেহেতু এটা সেন্টার। তাহলে এখান থেকে আমি করে নিচ্ছি AB ভেক্টর প্লাস AC ভেক্টর সমান, আমি এখান থেকে কি বলতে পারি, AC ভেক্টর সমান এই ছবিটা থেকে AC ভেক্টর প্লাস CD ভেক্টর সমান কি হবে আমার AD ভেক্টর। তাহলে AD মাইনাস CD, AC সমান কি লিখবো তাহলে আমি AD ভেক্টর মাইনাস CD। বুঝা গেছে? কারণ কি AC প্লাস CD সমান হবে আমার কি AD, প্লাস আমার AD আছে, চেঞ্জ করে নিয়ে আমি এটা কিছু ভেক্টর শুধু এটাকে চেঞ্জ করলাম। এবারে AE রয়েছে, এই সমান আবার কি লিখতে পারি আমি এখান থেকে, দেখো এই ত্রিভুজ থেকে ত্রিভুজ AED, তাহলে এই দুটো ডিরেকশন একদিকে রয়েছে, তাহলে AD প্লাস DE সমান হবে আমার এই। তাহলে আমি কি লিখবো, আমি এই সমান তাহলে কি লিখবো আমি AD প্লাস DE, AD প্লাস DE হয়ে গেল। তাহলে এটা আমার হয়ে গেল এই সমান, লাস্টে কে পড়ে আছে আমার এ পড়ে আছে। বুঝা গেছে? তাহলে কটা আইডি আছে, একটা দুটো তিনটা আইডি। তাহলে আমি কি লিখতে পারি 3
এডি ভেক্টর যাচ্ছে। এবারে কি পড়ে গেল এবি, এবি প্লাস এবি ভেক্টর, এবি ভেক্টরের সঙ্গে আমি ডি ভেক্টর যোগ করলাম। তারপরে কি পড়ে রইল আমার, এ পড়ে আছে আর সিডি পড়ে আছে, এ মাইনাস সিডি। এবারে ছবি অনুযায়ী তোমরা দেখো এবি ভেক্টর এই ছবি থেকে দেখো কেমন রয়েছে, এবি এদিকে রয়েছে আর ডি কোন দিকে রয়েছে, এদিকে রয়েছে। তাহলে এবারে যেহেতু প্রতিটা বাহু আমার সমান, যেহেতু এটা সুষম একটা ষড়ভুজ, है क्योंकि ये है क्या है रेगुलर हेक्सागोन है, तो साइड क्या होगा, साइड ऑल द साइड्स आर इक्वल, दिस इज AB equals to BC equals to CD equals to D equals to EF equals to AF, so all the sides are equal, but this AB vector and D vector have the magnitude equal but has the opposite direction, so we can write AB equals to minus D, but D equals to क्या लिखना है, DA AD प्लस AB माइनस ऑफ AB, माइनस ऑफ AB वेक्टर, क्योंकि D इक्वल्स टू माइनस AB होगा, क्योंकि दोनों क्या है सेम है, इक्वल है, अपोजिट है, इसलिए वो दोनों काट जाएगा। और अभी देखो A और CD दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ए का डायरेक्शन इधर है, सीडी का डायरेक्शन उधर है, लेकिन दोनों मान क्या है, सेम है। ए भी 5 है, ए भी सोचो ए भी 5 है और ए भी 5 है, तो 5 5 क्या होगा, काट जाएगा, तो ए और सीडी क्या दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद 0, तो क्या रहता है 3 एडी रहता है। अब इसको देखो एडी जो रहता है ऑप्शन में हमारा एओ करके लिखा हुआ है, तो एडी इक्वल्स टू क्या होता है 2 एओ होगा, तो एडी इक्वल्स टू क्या होगा 3 into 2AO, तो 6AO हो जाएगा। समझ गया। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करेंगे। डस्टर किधर गया, डस्टर देखो। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन होगा। रेगुलर हेक्सागोन हो गया। अभी एक क्रम बोर्ड का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ब्लूज देते हैं ना। फिजिक्स क्या है, इंटरेस्टिंग है, पहले समझना होगा। एक क्रम बोर्ड है, एक क्रम बोर्ड ऑफ 15 to 50 सेमी is shown below। एक क्रम बोर्ड CARRON क्रम बोर्ड BOARD क्रम बोर्ड of 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर क्रम बोर्ड का साइज है is shown below, is shown below, shown नीचे दिखाया गया। assuming side B as positive y axis, assuming side B as positive y axis and C as positive x axis। Stop. If striker shot from middle of the border from side C, if striker shot from middle of the border from side C
फ्रॉम साइड सी, obeying law of reflection, obeying law of reflection, obeying law of reflection stop exactly opposite to its original position, stops exactly opposite to its original position, opposite to its original position, at side A, at side A। क्वेश्चन क्या बोला गया? Then the position vector of a point, then the position vector of a point at which the striker hits, at which the striker hits along side B, along side तो हमको पहले पोजीशन वेक्टर निकालना होगा उसको। इसी करने के लिए हमको क्या करना है, पहले हम ग्राम बोर्ड पर ड्रा करते हैं। ग्राम बोर्ड के इसमें क्या रहता है, बड़ा रहता है, इस टाइप की बड़ा रहता है, ठीक है। जैसे मिडिल है, क्या बोला गया और एक बोला गया इधर ये जो एज है, धार है, 50 सेंटीमीटर है। कितना? 50 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ग्राम बोर्ड का, ठीक है। अभी ये भी 50 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये साइड बी है, ये बी साइड है, अरे सी साइड है। इसको y एक्सिस बोलता है, क्या? y एक्सिस पॉजिटिव, अरे एक्स एक्सिस। तो यहाँ से मिडिल से एक स्ट्राइकर छोड़ा, उसके बाद स्ट्राइकर बी में लगा, बी में लगने के बाद बी में इधर बी, इसमें बी में लगा, लगने के बाद एग्जैक्टली मिडिल में पहुंचा, समझ गया ना? एग्जैक्टली मिडिल वाला पोर्शन में वो जाके वही बोला है। तो पहले क्वेश्चन को सही ढंग से समझना होगा। क्या बोला गया? ग्राम बोर्ड ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर इज शोन बिलो, दिखाया गया, लेकिन ये शॉर्ट नहीं दिखाया था। हम ड्रॉ किया ऐसे, स्ट्राइकर इधर स्ट्राइक किया, हिट किया इधर, धक्का मारा इधर, उसके बाद इधर गया। तो ये वाला ड्रॉ नहीं किया था। बोला गया एज्यूमिंग साइड बी एज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव, और सी बोला गया ये एक्स एक्सिस है। इफ स्ट्राइकर शॉट्स फ्रॉम मिडिल ऑफ द बॉर्डर फ्रॉम साइड सी, यहाँ से एक स्ट्राइकर छोड़ा, obeying law of reflection stop exactly opposite to its original position at side A, ए साइड है, इसका अपोजिट है, एकदम जो पोजीशन में था उसी पोजीशन में अपोजिट साइड में वो जाके रुका।
ऐसा बोला गया था। तो इसको तुमको ड्रॉ करना होगा इस टाइप का, समझ गए। देन पोजीशन फैक्टर ऑफ ए पॉइंट एट व्हिच द स्ट्राइकर हिट्स अलोंग साइड बी, इस पॉइंट को आपको निकालना होगा, इस पॉइंट का पोजीशन फैक्टर क्या है, अर्थात इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा। देखो क्या करते हैं, दोनों ऑप्शन क्या क्या दिया गया इधर। पहले ऑप्शन देखो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये जो पॉइंट है इसको इसी का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 25 आई कैप प्लस 30 जे कैप। ऑप्शन बी क्या आ गया 25 आई कैप प्लस 25 जे कैप। ऑप्शन सी दिया गया 25 जे कैप। ऑप्शन डी दिया गया 0 आई कैप प्लस 45 जे कैप। इस टाइप का पोजीशन वेक्टर का ऑप्शन दे दिया। तो इसको करने के लिए हमारा इजी ट्रिक्स क्या है, तो इजी ट्रिक्स तुमको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है। इसके लिए पहले देखो ये वाई एक्सिस है ना, तो ये जो पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस में लाई करता है, वाई एक्सिस का ऊपर रहता है। तो जब वाई एक्सिस के ऊपर रहता है तब एक्स का कोई कोऑर्डिनेट नहीं रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं रहता। वाई एक्सिस का जो पॉइंट रहता है हम लोग बचपन से सीखा है, वाई एक्सिस में जितना भी पॉइंट रहता है उसी का एक्स का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग एक ए पॉइंट ए वाला नहीं लेंगे, एक्स एक्सिस है, एक्स पॉइंट है, एक्स आई कैप बोला है, एक्स आई कैप बोला है, मतलब इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको देखो ये दोनों डिफाइंड है, इसका तो एक्स नहीं है 0 है, तो मतलब ए भी हो सकता है और ए भी, दोनों भी हो सकता है, समझ गया। दोनों का देखो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, तो ये बिंदु का तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा, तो ये दोनों हो सकता है 25 जे कैप और 45 जे कैप, समझ गया। तो कौन सा होगा, तो देखो ये जो पॉइंट है ये बोला गया ये डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, 8 है 8 सेंटीमीटर, अरे टोटल कितना है 50, तो ये मिडिल में है, तो इसी पॉइंट क्या है 25 होगा, 25,8 होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 8, टोटल 50 है, इधर से इधर 50 है, 50 छोड़ दो, और यहाँ से कितना है 25 है, मिडिल है 25, तो ये यहाँ 25 है, तो 25 होगा 42 होगा, 8 छोड़ दो इस पॉइंट का, 8 डिस्टेंस छोड़ दो, 25 होगा 40, और ये जो हिट करेगा एग्जैक्टली मिडिल में हिट करेगा, तभी मिडिल में जाके रुकेगा। तो ये मिडिल का क्यों मिडिल होगा, ये भी एक क्वेश्चन है, क्यों मिडिल में हिट करेगा, क्योंकि इधर बोला गया देखो ओबेइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टॉप एग्जैक्टली अपोजिट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो लॉ है उसी को फॉलो करेगा, मतलब दिस एंगल और दिस एंगल शुड बी इक्वल, अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा सेम होगा, दिस एंगल और दिस एंगल विल बी सेम। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आपातन कोण, और इसको बोलता है प्रतिफलन कोण, दोनों सेम होगा। तो दोनों सेम होगा जब ये मिडिल में आके क्या करेगा हिट करेगा, नहीं तो इधर जहां पे भी हिट करेगा ये दोनों एंगल सेम नहीं होगा। इधर हिट करेगा तो ये एंगल थोड़ा बड़ा छोटा हो जाएगा, देखो इधर हम करते हैं थोड़ा, तो सोचो इधर हिट करा तो क्या होगा इसी टाइप का हो जाएगा ना, देखो दोनों एंगल सेम होगा, ये छोटा बड़ा हो जाएगा एंगल, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा जब मिडिल पॉइंट में क्या वो हिट करेगा स्ट्राइकर, तो दोनों एंगल सेम होगा। तो ये जो मिडिल है तो इसी का टोटल कितना होता है 50 है, तो ये मिडिल कितना होगा 25 होगा, 25। तो ये जो वाई एक्सिस में लाई करता है इसलिए जेके उसको बोलता है 25 जेके। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग यूट्यूब चैनल।
Gurukul Physics. Subscribe, friends. Subscribe my channel to get regular physics update about the NEET JEE questions